नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुई वित्त मंत्री बजट टैबलेट के साथ सामने आई पहली तस्वीर। संसद में 11 बजे पेश करेंगी बजट। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान, ये बजट पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित। भीख मांगने की मानसिकता से बिहार को निकालना है, बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग खारिज होने पर बोले आरसीपी सिंह। संसद सत्र को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक आज, केंद्र सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। यूपी में सीएम की बैठक में नहीं गए ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य से मिले। दोनों नेताओं की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड जाएंगे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। जम्मू के बट्ठल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, गोलीबारी में एक जवान घायल। नए कोच और कप्तान के साथ श्रीलंका पहुंची भारतीय टीम, एयरपोर्ट पर दिखा खिलाड़ियों का मस्ती भरा अंदाज। दिल्ली एनसीआर में आज भी बरसेंगे बदरा, अगले 2 घंटे में होगी झमाझम बरसात। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को सेना ने बताया माफिया, कहा देशद्रोह रोधी अभियान के खिलाफ कर रहा दुष्प्रचार। नहीं सुधरे नेपाल के पीएम केपी ओली, सत्ता संभालते ही भारतीय क्षेत्रों पर फिर ठोका दावा। हर समय अमेरिकी लोगों के लिए लड़ते हैं, कमला हैरिस ने की जो बाइडेन की प्रशंसा। आपत्तिजनक वीडियो मामले में बाइडेन के बेटे का यू टर्न, फॉक्स न्यूज के खिलाफ दायर मुकदमे को लिया वापस। गाजा में इजरायल ने जारी किया घर खाली करने का नया आदेश, गोलीबारी में 37 फिलिस्तीनियों की गई जान। I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. Critical minerals. Minerals such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on 2 of them. This will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. Solar energy. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar gas
glass and tinned copper interconnect. I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. Marine products. India's seafood exports in the last financial year touched an all-time high of more than 60,000 crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp, and fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty on various inputs for manufacture of shrimp and fish feed. Leather and textile. Similarly, to enhance the competitiveness of exports in the leather and textile sectors, I propose to reduce BCD on real down-filling material from duck or goose. I am also making additions to the list of exempted goods for manufacture of leather and textile garments, footwear, and other leather articles for export. To rectify inversion in duty, I propose to reduce BCD subject to conditions on methylene diphenyl diisocyanate MDI for manufacture of spandex yarn from 7.5 to 5%. Furthermore, the export duty structure on raw hides, skin, and leather is proposed to be simplified and rationalized. क्या महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के बीच सब ठीक चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों ने तनाव के संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहले हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ा गया। इसके बाद अब विधानसभा सीटों के लिए रस्साकशी तेज है। वहीं अब अजीत पवार की एनसीपी की ओर से लाडली बहन योजना के पोस्टर लगाए गए हैं। अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना के प्रचार के लिए लगाए गए विज्ञापन पोस्टर से मुख्यमंत्री शब्द नदारद रहा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पिछले महीने विधानसभा में अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की घोषणा की थी। पवार एकनाथ शिंदे सरकार में वित्त मंत्री भी हैं। ये पोस्टर सोमवार को पवार के जन्मदिन के अवसर पर अहमदनगर जिले के पारनेर, अहमदनगर, श्रीगौड़ा और करजत जामखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों के उनके दौरे के दौरान लगाए गए थे। चारों स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में पवार ने महिलाओं को संबोधित किया और योजना का उल्लेख माझी लाडली बहन के रूप में किया गया, जबकि मुख्यमंत्री शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया। उनके इस दौरे के वक्त ही पिंक कलर के पोस्टर लगाए गए थे। इनमें अजीत पवार की तस्वीर तो थी, लेकिन सीएम का जिक्र तक नहीं था। और अब इसको लेकर क्या तेज हो गए हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में काफी तानाखींची चल रही है। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कार्यकर्ताओं ने तमाम शहर में हर जगह पोस्टरबाजी की है। बड़े पैमाने पर सब जगह पोस्टर्स लगाए। कुछ जगह पर उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी दर्शाया गया। वहीं नागपुर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक गढ़ है और उन्हीं के शहर में जो है देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर्स न लगकर अजीत पवार के पोस्टर तमाम जगह पर है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं अंतर्भाव को और कार्यकर्ताओं की मानसिकता को विभिन्नता देता हुआ साफ नजर जरूर आता है। कैमरा पर्सन विलास के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। खैर, अजीत पवार की एनसीपी की ओर से अब सफाई भी दी गई है। एनसीपी का कहना है कि इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर विवाद की जरूरत नहीं है। स्कीम का नाम माझी लाडली बहन है, इसीलिए इसका जिक्र बैनर पर किया गया। इसमें ना तो कोई राजनीति है और ना ही किसी का अपमान किया गया है। भारतीय नेवी के वॉरशिप आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने की घटना हुई है। एक न्यूज एजेंसी ने नेवी के हवाले से बताया है कि मल्टी रोल फ्रिगेट ब्रह्मपुत्र में 21 जुलाई की शाम मेंटेनेंस के दौरान आग लगी थी। डॉकयार्ड में तैनात फायर फाइटर्स की मदद से शिप के क्रू ने 22 जुलाई की सुबह तक आग पर काबू पाया। आग काफी भीषण थी, जिसकी वजह से डॉकयार्ड की तरफ वाला शिप का हिस्सा बुरी तरीके से डैमेज हो गया है और शिप एक तरफ से झुक गया है। हादसे में एक सेलर लापता हो चुका है, जिसकी तलाश जारी है। नेवी ने घटना की इंक्वायरी का आदेश दिया है। फिलहाल ये चेक किया जा रहा है कि आग लगने का कोई और रिस्क तो नहीं है।
दरअसल जानकारी के अनुसार नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS ब्रह्मपुत्र में रविवार शाम को आग लग गई थी। घटना के वक्त मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में जहाज की मरम्मत कर रहे थे। नौसेना ने एक बयान में कहा है, नौसेना डॉकयार्ड मुंबई और बंदरगाह में मौजूद अन्य जहाजों से आए अग्निशमन दलों की मदद से जहाज के चालक दल ने सोमवार सुबह तक आग पर काबू पा लिया। आग के जोखिम का आकलन करने के लिए सैनिटाइजेशन जांच सहित अन्य कार्रवाई भी की गई है। नौसेना ने कहा कि जहाज पर लगी आग को बुझा दिया गया है। हालांकि दोपहर के वक्त जहाज एक तरफ से झुकने लगा है। नौसेना ने कहा, तमाम कोशिशों के बावजूद जहाज को सीधा नहीं किया जा सका है। नौसेना ने आगे कहा, एक जूनियर नाविक को छोड़कर सभी कर्मियों को बचा लिया गया है। नाविक लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। उधर भारतीय नौसेना ने आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं। और उसके बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को युद्धपोत INS ब्रह्मपुत्र में लगी आग से अवगत करा दिया है। आपको बता दें कि INS ब्रह्मपुत्र स्वदेशी रूप से निर्मित पहला निर्देशित मिसाइल युद्धपोत है। अप्रैल 2000 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS ब्रह्मपुत्र का वजन तकरीबन 5300 टन है। इसकी लंबाई 125 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई 14.4 मीटर है और ये 27 नॉट से अधिक की गति से चलने में क्षमता रखता है। INS ब्रह्मपुत्र पर 40 अधिकारियों और 330 नाविक का दल होता है। जहाज मध्य दूरी, निकट दूरी और सतह से सतह व सतह से हवा में मार सकने वाली मिसाइलों और टारपीडो लॉन्चर से लैस है। जहाज पर कई तरह के सेंसर भी लगे हैं। इससे चेतक हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकता है। INS ब्रह्मपुत्र ने 2006 में लेबनान संघर्ष के वक्त ऑपरेशन सुकून में भी अहम भूमिका निभाई थी। जहाज का नाम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर रखा गया है। जहाज के प्रतीक चिन्ह में नीली समुद्री लहरों और भारतीय गेंडे को दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अजब हाल से गुजर रही है। एक मामला शांत होता है तो दूसरा उसके पीछे पड़ जाता है। सरकार और संगठन का मामला उठाकर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं और जिले के नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगा दिया है। अब इसी तरह का एक आरोप बरेली से सामने आया है। यहाँ महानगर उपाध्यक्ष के पद पर बैठे प्रदीप अग्रवाल अपनी ही पार्टी के नेताओं से इतना ज्यादा दुखी हो गए हैं कि हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म अपनाने की धमकी दे डाली है। उन्होंने ये धमकी पार्टी के बैठक या बंद कमरे में नहीं दी, सोशल मीडिया पर बकायदा इस बारे में लिखा है। यहाँ तक कहा है कि अगले 15 दिन में मुसलमान धर्म अपना लूंगा। उनकी पोस्ट वायरल होते ही जिला के नेताओं ने सुध ली और उनसे मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट भी डिलीट कर दी। हालांकि तब तक इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट बड़े पैमाने पर वायरल हो चुका था। दरअसल हत्या के प्रयास और SC/ST के मुकदमे और इसके बाद 2 असलों के लाइसेंस निरस्त होने के बाद बीजेपी महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल का दर्द छलका है। इसी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा, मैं प्रदीप अग्रवाल, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बरेली महानगर। कल की घटना से पार्टी के वरिष्ठ नेता या किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री, किसी ऊंचे पदाधिकारी ने मेरा मामला संज्ञान में नहीं लिया। कोई अगर साथ नहीं दे सकता है तो कम से कम खड़े होकर 2 बोल प्यार से तो बोल सकता है। आगे अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इस घटना से मैं बेहद दुखी हूँ। मेरा मन इतना दुखी है कि मेरे मन में विचार आ रहा है, क्यों ना मैं हिंदू धर्म त्याग कर मुसलमान धर्म अपना लूं। उनके रहूंगा तो पीड़ा होगी, दुख तो नहीं होगा कि कोई बोल नहीं रहा है। बाकी जो भाग्य को मंजूर होगा देखा जाएगा। अगर मेरी अभी नहीं सुनी गई तो मैं 15 दिन के अंदर मुस्लिम धर्म अपना लूंगा। बीजेपी उपाध्यक्ष की ये पोस्ट वायरल होते ही पूरी पार्टी हरकत में आ गई। बीजेपी के कई बड़े नेता, पदाधिकारी सक्रिय हो गए। उन्होंने प्रदीप अग्रवाल को समझाकर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदीप ने सोशल मीडिया से पोस्ट हटा दी। प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए और उन्हें जेल भेजा गया। उनके दोनों सशस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। इसके बाद भी पार्टी के किसी नेता ने उनकी कोई पैरवी नहीं की। किसी ने सहानुभूति के 2 शब्द तक नहीं कहे। इससे वे आहत थे। इसी रेश के कारण उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर 15 दिन में धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनने की बात कही थी। अब बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों ने उन्हें पूर्ण समर्थन देने की बात कही है, जिसके बाद उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।